engineer from IIT Kanpur. He worked with Flipkart when it was just a startup. He completed his MBA from IIM Ahmedabad. He has been working in education sector for 6 years. He comes from a small town, Chittorgarh. After IIM, he left a package of 27 lakhs so that he could provide affordable education in small town. He started L4O with two of his batchmates from IIT Kanpur and handles the product and learning at the company. And the other speaker, the Mr. Harsh Sharma, is also an MBA from Mumbai with 18 years of experience in different companies, Mall and Pearson. So over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. So let me share my screen. Thank you so much, ma'am. And it's a privilege, it's an honor to be with you and your students. So thank you so much, Ramandeep Kaur, ma'am. And today we'd love to interact with you. But before we start, I have a small question for everyone. But before that, I want to know, do they have a right to unmute their mics or are they not allowed? Yes, sir, they can unmute. And I'm here to facilitate. If they don't, then I will help them. Okay, all right. So just a quick question before we begin. यहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं क्या? या फिर हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि जिनको हिंदी में कुछ दिक्कत है? No, sir. Okay, great. ठीक है, तो फिर ग्रेट. तो फिर हम लोग सेशन हिंदी में करेंगे. हम लोग की मदर टंग हिंदी है और मुझे लगता है कि हिंदी में थोड़ा मे बी हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होगा. तो इसलिए हम लोग ये वाला सेशन हिंदी में करेंगे. इट्स ओके विद एवरीवन. नहीं तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बीच में बोलते रहेंगे. I hope that's okay. Yep. Yeah, Hindi is fine, sir. Okay, great. Thank you. Great. Chaliye, thank you so much, ma'am. Thanks, Rahil. 10:34. So as ma'am beautifully said, with the 18 years experience and my exposure, thank you so much about that. Chaliye, so let's start. Before we begin, I have a small quiz. मेरे पास एक छोटे से questions हैं. I always start with the small questions with everyone. So, who's going to tell me ये कौन है? पहचान कौन बताएगा? You can unmute yourself or you can raise hand. कौन बताएगा ये कौन है? Who is he? Guys and girls, हम सुबह 10:30 बज रहे हैं and I think हम लोगों ने सबने breakfast किया है. We all are charged up. Would you like to unmute? या screen नहीं दिख रही है? I hope my screen is visible. The new CEO of Twitter. Oh, great. That's absolutely great. Can you name? I can actually आपका नाम नहीं आ रहा है. Can you name him? इनका नाम क्या है? कोई बता पाएगा? Parag Agarwal. Great. That's great. And he's from IIT Mumbai. Twitter के पहले CTO थे, and now he is the CEO of the company. That's great. So I have more questions like this. Okay. So there are 3 figures must be visible to you. तीन images दिख रही होंगी. 1, 2 and 3. So कौन बताएगा कौन सा कौन है? ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? Who is going to tell me? Sir, third is please. Sir, third is Ritesh Agarwal, CEO of Oyo Rooms. That's great, यार. That's great, यार. That's really great. और बीच वाले और इनकी नेटवर्थ कितनी है? Do you know any idea? इनकी नेटवर्थ कितनी है? सर सेकंड नंबर पे वो कुणाल शाह, फाउंडर ऑफ क्रेड एंड फ्री चार्ज. Absolutely great, यार. You guys are really intelligent. That's very interesting, यार. और first one तो काफी फेमस थे यार. अभी थोड़े दिन पहले इनका IPO भी आया है. सर फाउंडर ऑफ पेटीएम विजय शर्मा सर. Oh, great. So, do you know the commonality between all these 4? एक common चीज है इन चारों के बीच में. एक common चीज है, वो ये है. पहले वाले जो है मिस्टर पराग अग्रवाल, he is IIT, definitely a tag, but remaining 3 are not from IIT or IIMs, but still इन सब लोगों ने एक technology driven company start करी है. Rather वो CEO है, इन तीनों ने start करी है. I hope you understand. Very simple. चारों में एक ही कॉमनैलिटी है. टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में ये लोग काम कर रहे हैं या उसके ओनर्स हैं. और इनके नेटवर्थ की बात करी जाए, रितेश अग्रवाल is somewhere around 7,000 crore. फ्री चार्ज
एंड क्रेड के ओनर कुणाल शाह समवेयर 2800 करोड़ और विजय शेखर शर्मा इज अ ह्यूज नंबर, राइट? चलिए, सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एट दिस जंक्चर इज बिकॉज हमें लगता है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी विल शेप, बहुत सारी चीजें चेंज कर देंगी. ऑलरेडी जो काफी सारे प्रोफेसर्स और यहाँ पर हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि पिछले 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है. पहले एक स्कूटर लेने के लिए भी यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ्स, और टेलीफोन लाइन लेने के लिए भी मंथ्स है, आपको वेट करना पड़ता है. और आज विद इन 15 मिनट्स यू गेट अ सिम, और उसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं. वॉइस कॉलिंग वाज अ गुड थिंग, नाउ वीडियो कॉलिंग वाज अ ड्रीम, वो जो अभी पॉसिबल हो चुका है. सो आने वाले टाइम में वील सी देयर इज अ स्पर्ट, देयर इज अ ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी. ओके, दैट्स ग्रेट. So with to prove the point, इस point को prove करते हैं. So how things are moving internationally, as you can see, जो हमारे customer interaction है digital, customer interaction digital होने का मतलब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं. अच्छा, how many of you have ordered on Swiggy पे या Zomato पे order करा है? Hand raise कर दीजिए please. That will be enough for me. All right. स्विगी, जोमैटो. अच्छा, अमेजोन से खरीदा हो कुछ? अमेजोन, फ्लिपकार्ट? काफी. ओके 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 सर, ऑलराइट, ग्रेट. सो ये एक्चुअली आप लोगों का डिजिटल इंटरेक्शन है, राइट? आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के डिजिटली. सो अगर हम ये फिगर्स को देखें, सो ये मैकेंजी की रिपोर्ट है, विच वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च कंपनी. ये लोग अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्लोबली इट हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट 20-25% का ग्रोथ रेट आप यहाँ देख रहे हैं. एशिया पैसिफिक की भी बात करें, सो ये कोविड इज अ प्लस पॉइंट है, जहां पर डिजिटल इंटरेक्शन कस्टमर्स के बढ़ गए हैं. जो ग्रोथ प्रोबेबली हम 3 से 4 साल में देखते, वो हमें 1.5 से 2 साल के अंदर देखने को मिल रही है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. Second point, another graph. Average share of product or services that are partially or fully digitized, right? Asia Pacific region की बात करेंगे हम लोग. Again, it's a good jump in the excuse me, good jump in the graph. सारे businesses जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने फॉर्म को डिजिटाइज कर लें. So एक और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए we have one more chart which says that जो टॉप हॉन्कोस हैं, कंपनीज के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि करंट स्ट्रेटेजिक पॉस्चर जो है टेक्नोलॉजी की तरफ, दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर. और 19% बिलीव करते हैं कि उनका रिफोकसिंग द एंटायर बिजनेस हम डिजिटली लेके जाएंगे. सो दिस इज अ ह्यूज चंक, 19 plus 38 plus 30%. So it's a huge chunk. So ये सारे points, why we are discussing these points? That means कि going forward हम लोगों का टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ज्यादा होने वाला है. दैट मींस टेक्नोलॉजी के अंदर और सारी वैकेंसीज एंड जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, राइट? सो फ्रॉम हियर आई थिंक राही विल बी इन पोजीशन टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा काम हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में स्कोप रहेगा. राहिल, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच हर्ष. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हर्ष ने बताया कि जो 3 लोग हैं जिनका नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये लोग ऐसा नहीं कि दे कम फ्रॉम मनी, ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था, उनके बिजनेस में उन्होंने पैसा डाल दिया तो बहुत अमीर हो गए. इट्स नॉट लाइक दैट. दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, उनके पास कुछ नहीं था, और रादर दे वर लाइक मिडिल क्लास पीपल लाइक यू एंड मी, एंड जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द कंपनीज दैट दे बिल्ट, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्टर दैट दे वर वर्किंग इन, दे हैव बीन एबल टू बिकम सो बिग. तो अब ये देखते हैं कि जो पहले होना था वो तो हो चुका है, अब आगे क्या होगा, उसमें क्या होगा वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगी. दे आर द डिजिटल एंड एआई टेक्नोलॉजीज, बट एग्जैक्टली व्हाट? सो फर्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बज़वर्ड, हर जगह यूज होता है, जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा यूज होता है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जो काम पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे, वो काम अगर कंप्यूटर करने लग जाए, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. या फिर ऐसा काम जो इंसान भी नहीं कर सकता था, वो काम अगर कंप्यूटर करने लग जाए, जिसमें कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इंपैक्ट आ सके, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने वेमो कंपनी के बारे में सुना है? वेमो या टेस्ला,
If you have heard about them, raise your hand. Okay, some people have heard about Waymo and Tesla. So self-driving cars are not a thing of the future. They are already here. Already self-driving cars market में आ चुकी हैं. Commercially, mainstream आने में भी उनको 2-3 साल और लगे, 4-5 साल और लगे. But they're already here and they'll be here for the future. And already वो इंसानों से better drive कर रही हैं. तो उनका adoption होना ही है. It's just a matter of time. Similarly, अगर हम लोग बात करें chatbots की, तो जैसे कभी पहले किसी को कुछ बेचना या कस्टमर सर्विस पे पहले आप कॉल करते थे तो कस्टमर केयर के पास जाता था, वो आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता था. आजकल आप कॉल करो तो एक IVRS सर्विस होती है और फिर वो आपको बताती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो यहाँ जाओ, ये प्रॉब्लम है तो यहाँ जाओ, which is a very simple implementation of it. But now there are more complicated chatbots as well. जैसे आप Siri पे कुछ करते हो या Siri पे कुछ टाइप करते हो या Google Assistant use. Essentially they are chatbots. They're pretending to be human beings. They're pretending to talk to you. But essentially what they're doing is they're using their language capabilities. तो इसके लिए natural language processing में काफी काम होना है. इसके लिए in general image recognition में भी काफी काम होना है. Similarly fraud detection में काफी AI है कि आप normally आपका purchase का कुछ pattern है, अगर उसमें कुछ change हो रहा है तो that is through fraud detection. Similarly spam detection. आपके phones में कई बार आपका ट्रू कॉलर नहीं है आपके पास, तो भी अगर कुछ और सर्विस है तो वो बता देता है कि अच्छा दिस इज स्पैम, और ये आपके बैंक्स भी करते हैं. सिमिलरली हेल्थ केयर में भी ये आजकल काफी इंप्लीमेंट हो रहा है. जैसे कि बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स पहले मैनुअली पढ़ते थे और डॉक्टर्स को समझने में दिक्कत भी आ सकती है, हो सकता है कहीं कहीं पे वो कोई चीज मिस भी कर दे. लेकिन ऑलरेडी देयर आर AI systems which are better than any humans, or rather better than 99% of human beings. जैसे कि जो कैंसर वाले स्कैन्स वगैरह होते हैं उसमें IBM का एक there's a computer called Watson which is already better than 99% of radiologists जिनका काम है दिन रात वो रिपोर्ट्स पढ़ना. So AI is doing very well. कल ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, it was called Artificial Gamer. If you guys have time तो मैं recommend करूंगा कि आप लोग भी वो मूवी देखें, बहुत अच्छी लगेगी आपको. जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि गेम्स जो कि एक ट्रेडिशनल टेस्ट माना जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जैसे पहले चेस बोलते थे कि चेस तो कंप्यूटर कभी खेल ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं हम लोग कंप्यूटेशन कर ही नहीं सकते, वो कभी कंप्यूटर हमें हरा नहीं पाएगा. लेकिन 1990s में कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को हरा दिया, हु वाज द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम. और अभी रिसेंटली 2019 में व्हिच दिस मूवी डिनोट्स, आर्टिफिशियल गेमर, डोटा करके एक गेम होता है. कितने लोग आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हो, पबजी व्हाटएवर जो भी आजकल गेम्स आते हैं, वैलोरेंट, रॉकेट लीग. So I do see some hands. तो इस तरह का एक गेम होता है डोटा, डिफेंस ऑफ द एंशिएंट आई थिंक इट्स कॉल्ड, और which is a very complicated game, but AI ने already human beings को उसमें हरा दिया. So there's a lot of work going on in that direction. उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी आगे चल के बहुत रेलेवेंट होने वाली है, तो then it comes to cloud computing. अब क्लाउड, who knows कि अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? You can unmute yourself and tell me. Who's the richest person in the world right now? Yes, Prashant. Sir, Jeff Bezos. Jeff Elon Musk. हाँ, इन दोनों का ऊपर नीचे चलता रहता है. हाँ, Elon Musk और Jeff Bezos का ऊपर नीचे चलता रहता है. I am also not sure कि अभी कौन ऊपर है. I think it's Elon Musk, but Jeff Bezos is a close second. और Jeff Bezos क्यों अमीर कैसे बना Jeff Bezos? कौन बताएगा? So Amazon. Sir, maybe AWS. Yes, exactly. So he's the founder of Amazon, but Amazon is a very low profit margin company. वो जितना सामान बेचते हैं उसमें 1% 2% मार्जिन रहता है. दो उनका बिजनेस इतना सारा है लेकिन उनका प्रॉफिट बहुत कम रहता है मार्जिन, बट क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है इसलिए वो बहुत प्रॉफिट दे देता है. पर उनका असली कैश का जो पिछले 10 साल से 15 साल, पिछले 10 साल से उनके लिए बहुत कैश जनरेट कर रहा है, बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो है AWS, Amazon वेब सर्विसेज. अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, आप कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो आप AWS यूज किया ही है. नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम कॉम्पिटिटर है, लेकिन नेटफ्लिक्स भी अपनी सर्विसेज Amazon वेब सर्विसेज पे होस्ट करता है, बिकॉज Amazon वेब सर्विसेज इतनी अच्छी सर्विस है. तो एसेंशियली हो क्या रहा है, Amazon बोल रहा है कि आपको खुद का सर्वर तैयार करने की जरूरत नहीं है. पहले अगर मुझे वेबसाइट बनानी तो मैं क्या करता था कि मैं अपने घर पे एक कंप्यूटर रखूंगा, डेडिकेटेड कंप्यूटर, उसको मैं एज अ सर्वर यूज करूंगा. कभी मेरे घर पे लाइट गई तो मेरी वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी. उसके बजाय Amazon ने क्या किया, Amazon ने बोला कि मैं तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देता हूँ,
वो जो सर्वर है मेरे पास रखे हैं, एंड यू जस्ट यूज माई क्लाउड सर्विसेज, और इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली सर्विसेज, अगर आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हो तो दैट्स जस्ट स्टोरेज, बट उसके अलावा प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, जैसे अगर आप एंड्रॉइड एप्स यूज करते हो, ये सब लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। तो एसेंशियली एक सेंट्रल जगह पे सारी प्रोसेसिंग कर देते हैं, ताकि जो आपकी रिमोट डिवाइसेस हैं, जो क्लाइंट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, उसको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन ना करना पड़े। और क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आ रही है, ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट आगे चल के और भी बड़ी होने वाली है। इसमें बहुत लोगों की डिमांड होने वाली है इन टेक्नोलॉजीज में काम करने के लिए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फिर देन वी कम टू ब्लॉकचेन। आई नो यंग लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी में। कितने लोग आप में से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, के बारे में सुना है, जिन्होंने बिटकॉइन या इथेरियम, सोलाना, व्हाटएवर? यस सर। इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सो कोई मुझसे पूछता है कि सर ये तो स्कैम है, ये है, वो है। आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्कैम और नॉट। आई विल टेल यू कि क्या स्कैम नहीं है। जो उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, विच इज ब्लॉकचेन, दैट इज नॉट अ स्कैम। जहां पर कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का, दैट इज डेफिनेटली नॉट अ स्कैम। बिटकॉइन स्कैम है या नहीं है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट व्हाट आई डू नो इज कि जो उसको बैक करने वाली टेक्नोलॉजीज है, जो कि हम लोग एनएफटीज में भी यूज करते हैं, Sir, you are not audible. Just wait. I think network connection is problem. नो मैम, सेटिंग्स चेंज कर दो। हेलो, सबको अटेंडी बना दो। हाँ सब अटेंडी हैं, बट देखो, I'll show you, just wait.
हमको रिमूव कर रहा है। Hello. Can you guys hear me? Yeah, Rahil, ma'am. Sir, sir, please, you can move on. This is just a network issue here. Oh, no problem, no problem. Rahil, you can continue. Okay, my bad. I realized I was on mute. Yeah, so like I was saying, blockchain is a very legitimate piece of technology, जिसके लिए एकदम legitimate उसमें पीछे बैकग्राउंड है और उसको ऑलरेडी मार्केट में यूज किया जा रहा है। जैसे कि रियल एस्टेट इज वन बिग सेक्टर जहां पर इसका काफी यूज हो रहा है टू वेरीफाई कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली। जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी को फ्रॉड प्रॉपर्टी बेचनी है तो सेम प्रॉपर्टी को 2 बार बेच सकता है, या फिर ऐसा इस तरह की न्यूज सुनी होगी आपने कि किसी कॉनमैन ने आईफिल टावर बेच दिया या कुछ और बेच दिया। बट नाउ दैट कांट हैपन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे हर्ष, आप खुद रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर चुके हैं, डू यू वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट इट? यस, थैंक यू राहिल। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे तो काफी पुरानी है, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैं इनऑर्बिट मॉल्स के साथ काम कर रहा था, एंड के रहेजा कॉर्प जो पेरेंट कंपनी है वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के प्लान थे उनके पैन इंडिया एक्सपेंशन के लिए। सो आई वाज मेरे को पहला टास्क ये मिला था कि गो एंड रीड अबाउट टाइटल इंश्योरेंस। तो आई मेट लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जब मुझे समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पर उनसे जब मैं मिलने गया, आईसीआईसीआई वाज वन ऑफ देम, तो उनसे बात हो रही थी उनके एमडी से, तो दे टोल्ड मी कि मैंने कहा सर टाइटल इंश्योरेंस करते कैसे, ये टाइटल क्लियर है? तो बोले हम लोग पूरा बैक ट्रैकिंग करते हैं कि ये जमीन इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले, एंड ओरिजिनली ये किसके पास थी। सो इतना ट्रैकिंग होता है अप्रोक्सीमेटली। वो कह रहे थे कि 200 to 300 ईयर्स का वो लोग मैपिंग कर रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली जयपुर में जेडीए में मैंने सुना था कि ये दे आर स्टार्टेड डूइंग इट। अभी कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होगा I really don't know, but yes, this is one of the best usage I think of blockchain. Over to you, Rahil. Yeah, so NFTs are also one great use of technology. पहले ऐसे कि अगर कोई डिजिटल आर्ट है तो हाउ डू यू वेरीफाई ओनरशिप? क्योंकि यार अगर मेरे पास डिजिटल आर्ट है, मैं उसकी 100 कॉपीज बना दूं, which one is original? Who knows? And how does anybody know कि अच्छा किसका ओरिजिनल है, कौन उसका ओनर है? But with the use of blockchain, that can also be verified now. तो वो भी एक legitimate use case है जहां पर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, इसकी भी थोड़ी बात कर लें। तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज कॉल्ड वेब 3.0। वेब 3.0 मतलब दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। पहले वेब 1.0 होता था जहां पे स्टार्टिंग वेबसाइट्स होती थी। मे बी यू गाइस वर टू यंग, आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे का जमाना है जब बस वेबसाइट आप जाओ, खोलो, एक सिंगल पेज है, उस पर कुछ भी नहीं है। फिर वेब 2.0 आया जहां पर कि हम लोग
as users were able to create content on websites, जो कि हमें दिखता था. जैसे अगर मैं गेस करने की कोशिश करूं कि आप इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, तो प्रोबेबली नंबर 1 होगा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, फिर होगा मे बी लिंक्डइन, फेसबुक या इस तरह कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या यूट्यूब में भी. तो ऑल दीज वेबसाइट्स आर एक्चुअली नॉट क्रिएटिंग कंटेंट देमसेल्व्स. यूट्यूब वाले बैठ के थोड़ी वीडियो बनाते हैं, उन्होंने तो प्लेटफॉर्म बना दिया है. वीडियो तो यूजर बनाते हैं. सो दैट इज वेब 2.0, जहां पर कि यूजर कंटेंट क्रिएट कर रहा है. एंड नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटरनेट आ रहा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड वेब 3.0, जहां पर कि ओनरशिप भी डिसेंट्रलाइज हो रही है. इफ यू ओन, लेट्स से, अ टोकन ऑफ दैट, देन यू ओन अ पीस ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल. सो दिस इज अ न्यू इनोवेशन. अब अगर बात करें हम लोग एक और टेक्नोलॉजी की, सो दैट इज VR एंड AR. इसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा. 2015-16 से इसका काफी हाइप चल रहा है कि अरे VR आएगा, पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दिस दैट. एंड देन पीपल वर लाइक, अरे आए नहीं VR, तो कहाँ चला गया, गायब हो गया. बट द थिंग इज कि कोई भी चीज को एक बार इनोवेट होने से लेकर मास मार्केट एडॉप्शन में आने में बहुत टाइम लगता है. और आज Oculus जो कंपनी है, जो कि VR में सबसे ज्यादा काम करती है, जिसको फेसबुक ने खरीद लिया है, उसका रेवेन्यू जस्ट बाय डिवाइसेस इज मोर देन द रेवेन्यू ऑफ Xbox एंड PlayStation, जो कि एकदम इतनी मैच्योर गेमिंग डिवाइसेस हैं. उनसे पैसा Oculus Quest ने कमाया है. और पहले कोई भी चीज अडॉप्ट होती है तो सबसे पहले वीडियो गेम इंडस्ट्री, ये सब जो पायनियर्स हैं, ये लोग अडॉप्ट करते हैं. बट अब धीरे धीरे जैसे रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो टूर्स ऑनलाइन देने लगी हैं. साइंस में काफी टूर्स ऑनलाइन होने लगे हैं. एजुकेशन में इसको काफी ऑनलाइन यूज करने लगे हैं. और अब धीरे धीरे मीटिंग्स भी ऑनलाइन होने लगी हैं. कुछ जगहों पे टीम मीटिंग्स में ऑनलाइन होने लगा है, एंड वेयर यू कैन एक्चुअली ड्रॉ ऑन बोर्ड्स यूजिंग योर VR एवेटार. इसको और क्रिप्टो करेंसी को हम लोग कंबाइन कर लें तो फिर आजकल NFTs बिकने लगी हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी की. इफ यू गो टू द मेटावर्स, यू कैन गो देयर एंड यू कैन एक्चुअली बाय प्रॉपर्टी इन अ वर्चुअल रियल एस्टेट काइंड ऑफ वे. कि आप मेटावर्स में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो which uses NFT as well as VR AR in a virtual world. So it's again going to be a big factor, और इसमें कंटेंट क्रिएशन से लेकर प्लेटफॉर्म क्रिएशन तक बहुत सारे जॉब्स होने वाले हैं फ्यूचर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. Harsh, can we move on to the next slide? Okay, and the next thing is IoT. IoT की full form कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाओ. And if you know, you can unmute yourself and tell me also. Sir, Internet of Things. Very good. Everybody is very excited. Internet of Things. So Internet of Things क्या होता है? यार चीजों के इंटरनेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आजकल more and more devices are becoming smart. पहले हमारे क्या क्या चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होती थी? कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता था लैन केबल के थ्रू. फिर बाद में वाईफाई आया तो फोन और लैपटॉप, दो चीजें कनेक्ट होने लगी. फिर थोड़े स्मार्ट वॉचेस आए, जो तो अब आपकी वॉच भी कनेक्ट होती है. अब फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें स्मार्ट हो गई, जैसे कि स्मार्ट AC. आपके घर पहुंचने से आधे घंटे पहले AC ऑन हो जाएगा, या फिर आपके सुबह उठने से पहले आपका गीजर ऑन हो जाएगा ताकि आपको गर्म पानी मिले. स्मार्ट लाइट्स कि आप क्लैप करो, या फिर आप अपने फोन से कमांड दो, या फिर आप रूम में बैठे हो तो लाइट ऑन होगी, नहीं तो नहीं होगी. या फिर इस तरह के फ्रिजेस जो देख लेते हैं कि आपके फ्रिज में दूध रखा है नहीं रखा है, एग्स रखे नहीं रखे हैं, या चीज रखी नहीं रखी है, व्हाटएवर थिंग्स यू नीड, वो आपके फ्रिज में खत्म हो गए तो अपने आप वो ऑर्डर भी कर देगा और डिलीवरी भी आपके घर पे आ जाएगी. सो मोर एंड मोर थिंग्स आर बिकमिंग स्मार्ट. ये तो छोटे कंज्यूमर केसेस मैंने बताया, लेकिन अगर हम लोग कमर्शियल सेंस में बोलें तो इसका यूजेज एकदम मैसिव है. जैसे कि स्मार्ट ग्रिड्स, इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड्स मेंटेन करना लगता बहुत सिंपल है, लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. सिमिलरली जो हमारे ट्रेन्स का सिस्टम है, लगता सिंपल है बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और जैसे जैसे मोर डिवाइसेस आर कमिंग ऑनलाइन, जितनी डिवाइसेस को हम लोग स्मार्ट बना रहे हैं, उनमें सेंसर्स लगा रहे हैं, उनमें इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, और उनमें लॉजिक बोर्ड्स लगा रहे हैं, तो वो बहुत सारे डिसीजंस खुद ले सकती हैं और एक कनेक्टेड तरीके से काम कर सकती हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सेफ और काफी एफिशिएंट सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज आल्सो गोइंग टू बी वन बिग थिंग. कितनी चीजों में इंटरनेट का यूज होना है, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड. जैसे मुझे लगता है कि टेबल्स डोंट नीड टू बी स्मार्ट, बट मे बी वन ऑफ यू विल कम अप विद एन आइडिया कि अच्छा वील मेक अ स्मार्ट टेबल, व्हिच आई डोंट नो, विल डू समथिंग जिससे कि पीपल विल बी intrigued to buy them. So more and more devices are becoming smart, and IoT is also going to be a big field in the future. Then another very big field which is going to be is web development. तो web development की अगर हम लोग बात करें, so this is already massive. आज के जमाने में there are lakhs of jobs which are available in this sector. इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात और करेंगे, लेकिन if we just talk about specifically in this sector, तो already
दुनिया में देयर आर मोर देन 1 बिलियन वेब पेजेस, बिलियन विद अ बी, मतलब कि 100 करोड़ वेब पेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। और पहले छोटे छोटे बिजनेसेस की वेबसाइट्स नहीं होती थी। आजकल कोई भी थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार इंसान है तो अपनी बिजनेस का एक वेबसाइट बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे मेरे बारे में। अगर लोग सर्च करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आई नीड टू डिसाइड कि मैं अपना क्या फेस पुट ऑन करना चाहता हूँ। कोई दुकान बड़ी क्यों बनाता है, दुकान पे बोर्ड क्यों लगाता है? ताकि लोग देख के अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। सिमिलरली वेबसाइट इज योर ऑनलाइन साइन बोर्ड, जो ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, जो दिखाता है कि अच्छा आप कौन हो, क्या करते हो। इसलिए पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट इन बिल्डिंग वेबसाइट्स, एंड नॉट जस्ट बिग कंपनीज बट स्मॉल कंपनीज एज वेल। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आजकल स्मार्टली होने लगी हैं, जैसे कि इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कैब बुकिंग। हम लोग जब छोटे थे, कहीं रेलवे स्टेशन जाना होता था तो घर में एक आदमी जाता था ऑटो स्टैंड तक स्कूटर लेके और ऑटो को लेकर आता था, फिर ऑटो में बैठ के सब लोग रेलवे स्टेशन जाते थे। Whereas nowadays you have apps like Uber या Ola, जिसके थ्रू आप कैब बुक कर सकते हो, and through which life has become very convenient. उनके बिजनेस मॉडल प्राइसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट द टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ वेरी इजी। सिमिलरली ये सब टेक्नोलॉजीज फूड में भी यूज हो रही है, एग्री में यूज हो रही है, हेल्थ में यूज हो रही है, शॉपिंग में यूज हो रही है, पॉलिटिक्स में यूज हो रही है। हर जगह हम लोग वेबसाइट्स के थ्रू और एप्स के थ्रू बहुत सारा चीजें अकॉम्प्लिश कर पाते हैं, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनेबल करता है। और इसलिए इन सब सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स होने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या जॉब्स होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो once again coming back to this report from McKinsey which talks about jobs of the future, तो वन सेक्टर जिसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा जॉब्स होने वाले हैं वो है डेटा एनालिटिक्स। एज मोर डिवाइसेस आर बिकमिंग स्मार्ट, वी आर कलेक्टिंग मोर डेटा। हमारे पास ज्यादा डेटा आएगा तो हम लोग ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं, which shows us कि लोग कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कैसे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ये काफी एक ऑब्वियस चीज है। आईटी, मोबाइल, वेब डिजाइन, इसमें बहुत सारे जॉब्स होने वाले हैं। फिर R&D, प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, इनमें जॉब्स होने वाले हैं। पर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशन, इसमें जॉब्स क्यों होने वाले हैं? दिस माइट बी अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर यू, बट हाँ, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इनमें भी बहुत सारे जॉब्स होने वाले हैं। तो if we talk about 4 big sectors जहां पे बहुत सारे जॉब्स होने वाले हैं, Harsh, can we move on to the next slide please? Then those 4 sectors are data analytics, web design, IT, mobile apps, sales and marketing and sourcing, supply chain. इन 4 सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स जनरेट होने वाले हैं। और ये आप लोग खुद ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे वेब डिजाइन की अगर बात करें तो कितने लोगों ने शार्क टैंक करके एक शो आता है वो देखा है? If you have seen the show, just raise your hands. Yes sir. बकवास है। कितने लोगों ने देखा है? You can raise your hands. Yeah, so it's a reality TV show जिसमें स्टार्टअप्स अपनी बिजनेस पिच करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो you're not missing out on much. But उसमें there's a judge called अश्नीर ग्रोवर। उसका नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है तो if you can raise your hands. अश्नीर ग्रोवर का नाम कितने लोगों ने सुना है? Yes sir. Okay. अब ये कौन बताएगा कि अश्नीर ग्रोवर है कौन? सर फोन पे, ये भारत पे किसी का फोन, भारत पे का को-फाउंडर है। भारत पे के फाउंडर है सर, को-फाउंडर। एग्जैक्टली। सो भारत पे के फाउंडर है, मेरे कॉलेज के सीनियर है, मुझसे 10 साल सीनियर है। आई एम अहमदाबाद में हूं। फ्री चार्ज भी उसी अश्नीर ग्रोवर नहीं, फ्री चार्ज कुणाल शाह का था, बट हाँ, अश्नीर ग्रोवर जो कि भारत पे के फाउंडर हैं, मेरे कॉलेज के सीनियर ही हैं। उनकी कंपनी भारत पे अभी न्यूज में आई थी 6 महीने। सर आपका कॉलेज कौन सा है? आई एम अहमदाबाद और IIT कानपुर, 2 कॉलेजेस मेरे हैं। सो एनीवे, कमिंग बैक टू हमारी स्टोरी, तो भारत पे की एक न्यूज रिपोर्ट आई थी 6 महीने पहले कि टेक डेवलपर्स हायर करने के लिए वो लोगों को सुपर बाइक्स दे रहे हैं या फिर दुबई का ट्रिप्स दे रहे हैं। और ये सिर्फ भारत पे की स्टोरी नहीं थी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज कर रही थी। हम लोग भी जब डेवलपर्स हायर कर रहे थे तो हमें डेवलपर्स को उनके पुराने पैकेज से डबल ट्रिपल जॉब ऑफर्स करने पड़े, क्योंकि मार्केट में डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी हॉट सेक्टर राइट नाउ। अब अगर हम लोग इसमें स्पेसिफिक चीजों की बात करें कि कहां पर जॉब्स हैं, तो हम लोग उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। हर्ष चलेंगे। या सो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में देयर आर ऑलरेडी मोर देन 2 लाख जॉब्स। रिएक्ट में देयर आर मोर देन 1 लाख जॉब्स। तीसरा वाला दिस इज सपोज्ड टू बी बैकएंड में भी देयर आर मोर देन 2 लाख जॉब्स।
तो एक बार मैं बता देता हूँ फ्रंट एंड होता क्या है और बैक एंड होता क्या है। कोई भी चीज जो आप अपने कंप्यूटर पे देखते हो या अपने फोन पे देखते हो, जो वेबसाइट आपको नजर आती है, उसका कलर कैसा है, उसका लोगो कैसा है, उसमें बटन कहाँ पर है, कैसा डिजाइन बना हुआ है, दैट इज फ्रंट एंड। कुछ फॉर्म है जिसमें आपने कुछ भरा, तो दैट्स द फ्रंट एंड। और उसके पीछे का जो भी लॉजिक है, उसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, दैट इज द बैक एंड। एक एग्जांपल दूं मैं, तो आपके मोबाइल में जो वेबसाइट जो व्हाट्सएप का ऐप है, दैट इज लाइक द फ्रंट एंड। और आप उसमें मैसेज भेजते हो तो आपका मैसेज आपके फ्रेंड को ही जाता है, आपके पापा को नहीं चला जाता है गलती से। दैट इज द बैक एंड, जो उसका पीछे का लॉजिक है, जिसको पता करना है कि भाई किसके पास मैसेज जाना चाहिए, दैट इज द बैक एंड। तो इन सेक्टर्स में देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी एट लर्न4ओ आल्सो डिसाइडेड कि हम लोग इनमें कोर्सेज क्रिएट करते हैं। React.js की बात करें तो React.js is a framework on top of JavaScript. JavaScript is a very hot technology right now. JavaScript में बहुत सारे जॉब्स आने लगे हैं, और वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का ये फायदा है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जावास्क्रिप्ट में हो जाता है। तो इंसान एक टेक्नोलॉजी के थ्रू दोनों चीजें बिल्ड कर पाता है, विद ऑब्वियसली सम डिफरेंसेस, पर पहले के मुकाबले इट्स अ बहुत बड़ा चेंज। तो इसलिए आजकल इसमें बहुत सारे जॉब्स हो रहे हैं, और कंपनीज आर वेरी डेस्परेट टू फाइंड पीपल जो कि इन सेक्टर्स में काम कर सकें। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस। हर्ष, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? Thanks, Rahil. नहीं, just adding on to the Rahil's point, see, जब when I go, मतलब मैं कॉर्पोरेट पार्टनरशिप हैंडल करता हूँ, और जब मैं HR मैनेजर से कंपनी से मिलने जाता हूँ, सो पहला क्वेश्चन ये होता है मेरे पास, सर कितने कैंडिडेट हैं आपके पास? दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। सो आई होप इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अर्जेंसी कितनी है लोगों को इन टेक्नोलॉजीज पे लोगों को हायर करने की। एंड अभी रिसेंटली TCS ने भी ओपन कर दिया है, कॉग्निजेंट ने भी ओपन कर दिया। पहले सिर्फ वो इंजीनियर्स हायर करते थे, अभी BCA, MCA, BSc मैथ्स, मतलब वो तो कह रहे बीकॉम ग्रेजुएट को भी अगर कुछ टेक्नोलॉजीज पे काम करना आता है, वी विल हायर देम। सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अर्जेंसी कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी डिमांड है इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पे, या जो राहिल ने अभी डिस्कस किया। तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, और आई रियली डिसअपॉइंट जब मैं यंग ग्रेजुएट से मिलता हूँ, उनके इंटरव्यूज लेता हूँ, सर हमें तो जॉब ही नहीं मिलती है, हमारे समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज उनके पास रेडी होता है। ट्रस्ट मी, जॉब्स की कमी नहीं है, मतलब दिस इज ऑन दिस आई वुड लाइक टू से कि अभी जॉब्स की कमी नहीं है, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे ह्यूमन इंटरेक्शन वाले जॉब्स में हो, चाहे नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल जॉब्स हो, सब में इट्स अ बम्पर थिंग। बट आपको अपनी असेट और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा कि हम किस चीज में सबसे ज्यादा बेटर है, राइट? थैंक्स राहिल। So now we will open the floor to questions. अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो, if you are curious about anything, we are happy to answer any questions. See, when everyone is mute ना राहिल, I understand, मेरे को दो ही चीजें समझ में आती है, तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। So I really don't know क्या हो रहा है पीछे। तो I think कुछ FAQs हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो हमसे सवाल पूछते हैं लोग, और लोग ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है, पर हम लोग क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का? ये इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी, पर अगर मैं एक यंग कॉलेज ग्रेजुएट हूं तो मेरे लिए ये चीज कैसे रिलेवेंट है? If there are any questions, I'll answer those questions. Otherwise, yes, Dhruv, I see your hand is raised. Dhruv, you can ask. Sir, I have a question. Sir, can I ask? Yes, please go ahead, Dhruv. Sir, as I'm in Tier 3 college, so I want to connect to people. How to connect to people? Great people. How to network? Very good question. So Dhruv, अगर connect करने की बात करें, तो एक तो जो प्लेटफॉर्म है कनेक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन. दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग टू पीपल, लेकिन ऑब्वियसली उसमें यू कांट मेक वेरी डीप कनेक्शंस. यस सर, दैट इज द थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू फिगर आउट कि कहां पर तुम एक रेलेवेंट फील्ड ढूंढ सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए. क्योंकि देखो, अगर तुम किसी के साथ ऐसे इंटरेक्ट करो कि अच्छा आई एम कनेक्टिंग विद यू बिकॉज़ यू आई थिंक यू कुड बी यूजफुल टू मी, तो शायद लोग तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो. लेकिन इफ देयर इज समथिंग इन कॉमन जहां पर तुमसे इंटरेक्ट करके उनको भी अच्छा लगे या फिर उनको भी कुछ फायदा हो, तो फिर मे बी वो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना पसंद करें. तो जैसे एक चीज जिसपे मैंने कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, जैसे व्हेन आई रीच्ड आउट टू माय सीनियर्स जो कि मुझसे 10 साल 20 साल बड़े थे, तो मैंने उनसे हम्बली एक ईमेल लिखकर उनको रीच आउट किया कि मैं एक स्टूडेंट हूं और आपका जो बिजनेस सेक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी इस सेक्टर में काम करना चाहता हूं,
तो मैं आपका कुछ समय चाहता हूं जहां पे आप मेरी हेल्प कर सकें with a lot of humility and a lot of politeness. And this is when I was in college. And I will say कि 3 out of 4 people responded very positively to me, or 3 out of 4 people actually gave me appointments to meet them. तो अगर तुम सिंसियर हो किसी चीज को लेकर और तुम लोगों को दिखाते हो कि सच में तुम ये करना चाहते हो, which is not just you saying something, तुम्हारे साथ कहने से कुछ नहीं होता है, they have to believe in it as well. तो in my experience 3 out of 4 people are very helpful. Thank you, sir. Okay, Prashant, I see your hand raised as well. तो जैसे आपने टेस्ला के बारे में बताया था सर, वो सेल्फ ड्रिवन कार है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या सर इंडिया में सक्सेसफुल है? बिकॉज सर आपको ही पता है इंडिया में ट्रैफिक रूल कितनी आगे ब्रेक होती है, तो उसमें भी एक्सीडेंट्स का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है. I don't think this is very relevant to the session, but I'll still tell you my thoughts on this. Fact is कि already cars are smarter than human beings. Traffic rules break करते तो बचाना किसको? अपनी लाइफ. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे अपनी लाइफ बचानी है, पर अगर कंप्यूटर मुझसे बेटर है गाड़ी चलाने में तो इट्स बेटर, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा थोड़ी कि ट्रैफिक रूल ही फॉलो कर रहा है, वो तो फॉलो करेगा, लेकिन अगर सामने वाला रॉन्ग साइड भी आ रहा है या फिर बहुत तेज भी आ रहा है या फिर रेड लाइट पे भी जंप कर रहा है, तो कंप्यूटर नो उसकी अच्छा वो आ रहा है. कंप्यूटर के पास भी तो कैमरा लगा है, वो देख सकता है, उसके पास लाइडर स्कैनर है, उसको पता है कौन सी चीज कितनी दूर है. और मैं कभी टायर्ड हो सकता है मैं गलती से कभी मेरा कोई फोन बज रहा हो, मैसेज आ गया हो, आई ट्राई नॉट टू लुक एट माय फोन, बट स्टिल हो सकता है मेरे दोस्त से जो भी मेरे पास बैठा है उससे मेरी कुछ बात हो रही है तो आई एम डिस्ट्रैक्टेड, या अंधेरा है मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है. तो मेरी लाइफ बचाने के लिए आई ट्रस्ट कंप्यूटर्स मोर देन माई सेल्फ, बिकॉज दे आर बेटर देन मी. मैं कभी गलती कर सकता हूँ, आई कुड बी टायर्ड, आई कुड बी स्लीपी, बट कंप्यूटर्स आर नॉट टायर्ड, कंप्यूटर्स आर नॉट स्लीपी. एंड हेंस जो भी लोग बोलते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम होगा, दे आर इल इन्फॉर्म्ड. हो सकता है कि लोग कंप्यूटर्स को बुली करें इन द सेंस कि जो सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं उनके आगे से लोग निकलते रहे, क्योंकि उनको पता है कि कार्स अग्रेसिव नहीं होंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी दे आर ऑलरेडी बेटर देन ऑल ह्यूमन ड्राइवर्स. Rahil, on a lighter note, Pawan, I can see you. On a lighter note, हमारे इंडिया में ना हॉर्न बजाने की आदत बहुत है, सो हम इरिटेट हो जाते हैं, राइट? तो कंप्यूटर ड्रिवन कार, जो सेल्फ ड्रिवन कार होगी, वो इरिटेट नहीं होंगे, तब भी आपको सेफली घर पहुंचाएंगे, राइट? और आप एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली बॉयज को, दे लाइक टू शो ऑफ कि तेज चलाना एंड एवरीथिंग, वो सब कट ऑफ हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट रेशियोज कम हो जाएंगे. Yeah, Pawan, you wanted to ask something. Rahil sir, I have one more question. Yes, sir. Yes, bro. Go ahead. Sir, I want to ask a question about metaverse. Okay, sure. Go ahead. Sir, the land in metaverse is multiplicable. We can multiply it. So why people are buying land in metaverse? Very good question. देखो यार, तुम और मैं अभी बिलीव नहीं कर रहे हैं कि अच्छा दिस इज मल्टीप्लायबल एंड दिस कैन बी यूजफुल, पर कोई भी चीज की वैल्यू कहां से आती है? पीपल बिलीव इन इट्स वैल्यू, तभी तो कोई चीज वैल्यूएबल होती है. अब जैसे तुम्हारे पॉकेट में अगर कुछ करेंसी नोट हो, 2000 का नोट हो, है ना, अगर तुम किसी और देश में चले जाओ, तो जैसे मेरे पास ये 500 का नोट है, इसका कोई वर्थ नहीं है अगर मैं इसको यूएस में ले जाऊं, या फिर मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में ले जाऊं, या इसको टिम्बक्टू में ले जाऊं, या जाम्बिया में ले जाऊं. Nobody is going to believe in its worth, but in India people believe in its worth because इसमें लिखा है Reserve Bank guaranteed by the central government. तो हम लोग की हमारी गवर्नमेंट में बिलीव है, इसलिए हम लोग इसमें बिलीव करते हैं. जो लोग फेसबुक में बिलीव करते हैं, या जिनको लगता है कि फ्यूचर में उसका कुछ वैल्यू होने वाला है, वो लोग इसलिए वो लैंड खरीद रहे हैं, है ना. सो इट्स ऑल अबाउट कि लोग क्या परसीव करते हैं किसी चीज के वैल्यू. तुम लोग हो सकता है सच तुम्हें लगे कि यार बहुत ज्यादा है, बट या कोई आर्ट पीस है, तुम्हें लगे कि यार 100 लाख रुपए या $100 million के जैसा क्या है उसमें आर्ट, ऐसा तो बहुत नॉर्मल उसने बनाया. Why are people paying for it? People only pay for something which they think what value it creates? Huh? What value it creates? For example, the money the question, and Dhruv, this is a very good question, but I don't think it's very relevant to the session, and hence I will answer this question with another question. मोने की पेंटिंग्स या फिर पिकासो की पेंटिंग्स या फिर लियोनार्डो डा विंची पेंटिंग्स, वो क्या वैल्यू क्रिएट करें? And then I think based on that you should figure out. Yeah. Pawan, you wanted to ask something? Yes, sir. मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आई थिंक सर आप बता रहे मतलब कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं अभी, तो मतलब फ्यूचर में भी होंगी, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज मतलब जिसे मैं सीखूँ अभी प्रॉपर, उसमें काफी ज्यादा मतलब आगे तक जाऊँ, तो मतलब मुझे हेल्प करें, तो सर और इसका मतलब कौन सा वे है जहाँ से मैं सीख सकता हूँ? ओके पवन,
सो पवन, तुम्हारा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था, आई विल जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन। तुम ये पूछ रहे हो कि एक तो कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए जिससे कि काफी लंबे टाइम तक तुम्हारा जॉब सिक्योर रहे, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि कैसे तुम सीख सकते हो, है ना? यस। तो यही चैलेंजेस को लेकर हम लोगों ने हमारा जो कंपनी है L4O स्टार्ट किया, और उसका रीजन ये है कि जैसे क्योंकि मैं खुद चित्तौड़गढ़ से हूं, तो मुझे पता है कि कई बार एक्सपोजर नहीं रहता है कि क्या मार्केट में अवेलेबल है, पर इस समय जावास्क्रिप्ट की बहुत जॉब्स अवेलेबल है, और स्पेशली मर्न स्टैक की बात करें, MERN, मर्न स्टैक, जिसमें आता है MongoDB, Express.js, React.js और Node। ये चारों टेक्नोलॉजीज अगर तुम यूज करते हो तो तुम पूरी वेबसाइट बना सकते हो फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, और इसलिए इनके डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है आज। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक्सेप्ट फॉर MongoDB, Express.js, React.js, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर तुम जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आजकल मार्केट में डिमांड भी है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की बहुत, जो, और ये दिस इज क्योंकि ये नई है, काफी हॉट है मार्केट में, तो इस तरह के डेवलपर्स अभी कम भी है, तो इसलिए कंपनीज बहुत अग्रेसिवली इनको हायर कर रही हैं। कहाँ से सीखना है? तो देखो यार, हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक तीनों के, और हम लोगों ने जॉब गारंटीड कोर्सेज बना रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे जॉब्स है इसमें, तो स्टूडेंट्स को भी फेथ हो कि यार ओके, हम लोग यहाँ से सीखेंगे तो हमारा जॉब पक्का लगेगा। तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि हम लोग हमारे कोर्सेज में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अभी कोर्स कर लो, जब तुम्हारा जॉब लगेगा यू कैन पे एट दैट टाइम, और इफ यू पे एट दिस टाइम ऑल्सो, तो तुम्हारी पूरी सैलरी, पूरी जो फीस है वो हम लोग रिफंड कर देंगे अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगता 6 महीने के अंदर। That's the level of demand in these sectors. तो सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है L4O.in, जहां पर हम लोग सिर्फ जैसे वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं, बट उसके साथ तुम्हारी वीकली क्लासेस भी होती हैं, जहां पर कि टीएस तुम्हें वीकली पूछते हैं कि अच्छा तुमने कितना काम किया, जो तुम्हारा डाउट है वो रिजॉल्व करते हैं। एक तुम्हारा ग्रुप होता है जिसमें तुम आपस में पूछ सकते हो कि अच्छा कौन कहाँ तक पहुंच गया है। उसके अलावा देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर, कभी तुम्हें डाउट आया तो तुम कॉल करके पूछ सकते हो कि अच्छा मुझे ये डाउट है, इसको कैसे सॉल्व करना है। So they will guide you in the right direction. So L4O.in काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है which you can go, जो मेरी कंपनी L4O.in, and learn from there. Pawan, your hand is raised. Do you have another question? Yes, sir. No, sir. Okay, thank you. Any other questions, guys? Any questions, guys? So I'll take some of the FAQs जो बच्चे नॉर्मली पूछते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि अच्छा सर, जॉब गारंटी मतलब कि कब तक जॉब लग जाएगा? तो मैं उनको बताता हूँ कि द कोर्स ड्यूरेशन इज 3 months. इफ समबडी वर्क्स डिलिजेंटली तो वो 1-1.5 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, एंड वंस दे फिनिश द कोर्स इट्स वेरी क्विक प्रोसेस, विद इन अ मंथ आई थिंक यू कैन गेट जॉब्स इन द मार्केट राइट नाउ। अभी जिस तरह का डिमांड है लोगों का, जैसे हर्ष बता रहे थे, तो लोग उनसे बोलते हैं कि मुझे 100 बच्चे हर महीने चाहिए या फिर कुछ कंपनीज बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे 200 बच्चे दे दो, मुझे 500 बच्चे दे दो। इस तरह से कंपनीज डिमांड करती हैं कैंडिडेट्स की, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड है अभी डेवलपर्स का। तो ड्यूरेशन का हो गया। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा इसमें पैकेज कितना लगता है सर? तो हम लोग हमारी वेबसाइट पे मिनिमम जॉब गारंटी देते हैं 3 लाख रुपीस की। अगर हमारे यहाँ से कोर्स करते हो तो यू गेट अ पैकेज ऑफ मिनिमम 3 lakhs। लेकिन एक जो जनरल रूल ऑफ थंब होता है वो ये है कि जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, जितने साल का, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा पैकेज उतना होगा। एज अ फ्रेशर तुम हो सकता है 3 लाख में ज्वाइन करो, बट अगर तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम्हारा पैकेज करीब 25 लाख होगा। जो मेरे दोस्त मेरे साथ ग्रेजुएट किए, जिनको 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 8-10 साल, उन लोग का पैकेज आजकल 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर है, जो डेवलपर्स हैं आज। बट वो लोग IIT से हैं, IIT से जो लोग नहीं भी है उनके लिए भी किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब उसका पैकेज 50 लाख। वैसे रियलिस्टिकली इट्स मोर लाइक 70-80 लाख, बट एक जनरल रूल ऑफ थंब ये फॉलो करते हैं कि इसको 5 या 7 लाख से मल्टीप्लाई करो जितने साल का एक्सपीरियंस है। Any other questions, guys? और कुछ FAQs होते हैं हर्ष? और क्या पूछते हैं बच्चे हमसे? जनरली यही पूछते हैं राही, कोर्स ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग। सो कोर्स ड्यूरेशन इज, जो तुमने राइटली कह दिया, और प्लेसमेंट एंड गारंटी, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। बट ये है कि जैसे राहिल ने बोला, मैं वापस वही पॉइंट पे रिपीट करूंगा, लॉट ऑफ इंजीनियर्स, लॉट ऑफ पीपल हमेशा एक वो थॉट प्रोसेस में होते हैं कि हम लोगों ने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है, अब हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ट्राई टू एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस मोड में आप जरूर जाएं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, एंड प्लीज बी विद द मार्केट। ये एक सबसे बड़ा
होता है कि लोग स्टडी नहीं करते कि मार्केट में चल क्या रहा है. सो जस्ट गो अलोंग, थोड़े अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर सबसे डिस्कस करें कि क्या चल रहा है बाजार में, मार्केट कंपनीज किस तरह की हायरिंग कर रही है, एंड अगर वो आपने नहीं सीखी है तो जस्ट गो फॉर इट, लर्न एंड गेट प्लेसमेंट. ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने तो डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है, या फिर सर मैंने तो बीएससी कर रखा है, व्हाटएवर, कुछ भी डिग्री कर रखी है, तो मैं डेवलपर कैसे बन सकता हूँ? और उनको मैं फिर ये एग्जांपल देता हूँ कि आज का जमाना इज मोर अबाउट स्किल्स. डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट. डिग्रीज ये शो करती है मार्केट को कि भाई तुमने इतना डिलीजेंस तुम में था कि तुमने अपनी लाइफ के 16 साल, 17 साल, 20 साल, जितना भी टाइम पढ़ाई करके तुमने अपना सिंसियरिटी शो किया है. लेकिन जो स्किल्स हैं वो मार्केट में कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं. और जैसा कि पवन ने मुझसे पूछा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी मैं सीखूं जो लॉन्ग टर्म मेरे काम है, जावास्क्रिप्ट इज वेरी यूजफुल. लेकिन हो सकता है कि 10 साल बाद कुछ और नई लैंग्वेज आ जाए, जैसे कि गूगल ने भी गोलैंग निकाला है, या फिर टेंसरफ्लो वगैरह चल रहा है फॉर मशीन लर्निंग. तो हो सकता है कि मार्केट में वो एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी हो जाए इन 5 years 10 years. तो हमेशा इंसान को एक लर्निंग माइंडसेट रखना चाहिए, सिर्फ आज नहीं, नॉट एज जस्ट एज अ स्टूडेंट बट इन एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो, कि जो नई लैंग्वेज आए वो सीखना जरूरी है. जैसे जावास्क्रिप्ट मुझे सीखे हुए 2 सालों में, पहले मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी बिकॉज़ एट दैट टाइम वो नहीं चलता था, मैंने अपनी सी सीखा था. लेकिन एज टाइम, वंस यू नो द बेसिक्स, वंस यू नो कोडिंग करते कैसे, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, then it's just a matter of time कि तुम्हें कितना टाइम लगता है कोई नई लैंग्वेज सीखने में. Usually it takes just 2-3 days to get started and it takes roughly a month to become इतना familiar कि तुम उसमें अच्छे से कुछ काम डिलीवर कर सको. तो वो एक matter of time है. You should always have an open mind. You should always be learning. You should always have an attitude कि मुझे जो नहीं आता है वो मैं सीख सकता हूँ. मुझे कोई चीज नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो कभी नहीं कर सकता. कई लोग बोलते हैं मेरी मैथ्स खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी मैथ्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे. It just means that you need to work harder on those things जो कि तुम्हारा अभी वीक है. Okay, any other questions guys? Okay, Harsh, do you want to say something? Otherwise we'll bring the session to an end. Yeah. Thank you so much. Ma'am, thanks a lot to all of you for being such patient listeners. आप लोगों ने इतना अच्छे से हम लोग की बात सुनी. हम लोग को बहुत मजा आता है बच्चों से इंटरेक्ट करने में. It's a great privilege for us to, you know, be able to interact. Thank you, sir. Thank you, Rahil sir. It was very enlightening session about the technology. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. On the behalf of IIC Cell, that is the Institute Innovation Council, I thank to you both of them. And so nice session, and technology wise it is so advanced. Or the most important thing, Rahil, you make it very comfortable for the student. That is very important for us. And Harsh, you also enlighten us with a very good words. Thank you so much, guys. Or I wish you come to our institute and take a workshop or some offline session also. Can you come anytime? Absolutely, ma'am. We'd love to. Absolutely, ma'am. Absolutely. हम लोग को सबसे ज्यादा प्लेजर ही मिलता है बच्चों से इंटरेक्ट करने में. So we also wish कि apart from this academics, student can get information in the present scenario. So I'll invite you whenever you are comfortable. Please join us for a offline session. Absolutely, ma'am. We'll love to. And thanks a lot, Priya Mathur ma'am. One thing I missed is e-certificate के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं l4o.in पे, and you can sign up today. And before 4 p.m. you should sign up so that you can get an e-certificate in your email. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. तो वहाँ पे सर रेफरल कोड में क्या डालना है? रेफरल कोड you can leave blank. रेफरल कोड आप blank छोड़ सकते हो. Yes. More other questions? सर आपका मेल शेयर हो सकता है? Sure. मेरा LinkedIn प्रोफाइल और मेरा ईमेल एड्रेस दोनों हर्ष आपके साथ अभी शेयर कर देंगे. मेरा ईमेल एड्रेस बहुत इजी है वैसे, rahil@l4o.in. I don't know whether I'm unable to share on the chat, so what I'll do is I'll share the screen. They can see it. ठीक है. तो मेरा LinkedIn प्रोफाइल पे भी you can search me as Rahil Sheikh. If you search Rahil Sheikh l4o.in, तो I think you should be able to find me on LinkedIn. And मेरा ईमेल एड्रेस भी बहुत सिंपल है, rahil@l4o.in. हर्ष का ईमेल एड्रेस है harshsharma@l4o.in. Rahil, is it visible? हाँ, I can see just my email address by the way. हाँ, अब आपका भी दिख रहा है, आप पेस्ट कीजिए.
I can see yours as well. और हमारे LinkedIn profiles लिंक क्योंकि हम लोग भेज नहीं सकते, तो you can search for us. I think हर्ष का भी, if you search Harsh Sharma L4O.in, तो आपको हर्ष भी मिल जाएंगे. ठीक है, we'd love to interact with you guys, and if you have more questions, we'll be happy to answer them. ठीक है. Thanks a lot, guys. It was great interacting with all of you. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.